So Mendel in his experiment has used seven different characteristics, contrasting characteristics. Okay, what do you mean by contrasting characters? Means just they are opposite to each other. Means just they are contrasting, such as round, shape of the seed, round, versus wrinkled, मुड़ा तुड़ा, टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है, this is round seed and this is टेढ़ा मेढ़ा. Next is tall, tall versus short or dwarf. ठीक है, likewise violet flowers, white flowers versus violet flowers. Okay, so he used, and many other, color of the seed likewise, and he used several characteristics of this. One very important experiment he did with by taking tall plant. ठीक है, with a tall plant. Suppose I write, he wrote actually that T, it indicates, this T indicates tall plant which is tall, and he crossed means, what do you mean by this cross? Crossing means transfer of the genetic, means of the pollen grains from the tall plant to the short plant, and he indicated short plant as small t. Okay, short, this is short plant. Why he has used? Because T, capital T, stands for tallness and short t for shortness. Okay, tall, capital T is tallness and small t is for short. And why I have used this double here? Because you know that DNA is always a double stranded. ठीक है, DNA is always double stranded, and ये जो T है ना, these are nothing but the characteristics. What are these T? These are the characteristics of a plant. So always on a DNA का जो सीक्वेंस होता है ना, इसी के अनुसार हमारा, जैसे हम इधर बताते हैं, like here, if this is DNA strand, तो हमारा यहाँ certain codes होता है. In higher classes you will learn that there are certain codes. Okay, यहाँ पर A, T, G, C इस तरह का कुछ कोड्स बना रहता है. बेस्ड ऑन दिस कोड्स A, T, G, C, A, G, A, like this, these are the codes. These codes, they form certain characters. In higher classes you will become more aware of it, or I will explain you. देखो यहीं पर दिया हुआ, in your book only it is given that how these traits get expressed. First you understand this. Cellular DNA is information source of making proteins in the cell. A section of DNA that provide information for one protein is called gene for that protein. That means one section, one segment of the DNA is this carry information for the protein. Okay, characters or the proteins. ये कुछ proteins बनाएंगे, and you know that proteins they make the body structure or the responsible for formation. So these जीन कोड, ये जो है पर्टिकुलर, इनको एमिनो एसिड कोड बोलते हैं और पर्टिकुलर जीन बोलते हैं. ठीक है, दे कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स, एंड ये प्रोटीन क्या करते हैं, बॉडी में कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट कराते हैं, जिसके वजह से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाता है. इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. सो अल्टीमेटली दिस DNA codes are present, this DNA sequence are there which are expressed
वो एक्सप्रेस हो जाते हैं वॉट एवर वी आर हैविंग इन आवर बॉडी द कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज ऑफ द दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। तो यहाँ क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर जो कोड है ना, दिस सेम कोड इज़ प्रेजेंट, मतलब इसका सेम कोड इधर प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर टी, तो टी एक तरह का कैरेक्टर है, इधर सेम तरह का मीन्स टॉलनेस इज़ वन टाइप ऑफ कैरेक्टर, कलर इज़ वन टाइप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, शेप इज़ वन टाइप ऑफ कैरेक्टर। तो जो टी है ना, ये एक तरह का कैरेक्टर है, उसी का दूसरा तरह का, वेदर इट इज़ सिमिलर काइंड, जैसे कैपिटल टी ये भी हो सकता है और स्मॉल टी ये भी हो सकता है, लेकिन टॉलनेस का ही दो कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग, आइदर कॉन्ट्रास्टिंग या सेम, दोनों स्ट्रैंड में होगा, इसको स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। या तो कैपिटल टी इस तरफ होगा, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या दोनों तरफ स्मॉल टी हो सकता है, एनीथिंग, आइदर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी, एनीथिंग कैन बी, एनी कॉम्बिनेशन कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारा दो लेकिन ज़रूर होता है, यहाँ पर हमने दिखाया इट्स ऑलवेज डबल। तो मेंडल ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब जो F1 प्रोजेनी आया, प्रोजेनी मीन्स जो F1 जनरेशन मीन्स इनका जो प्रोडक्ट बना, इनसे जो प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनिज्म का, तो वो क्या हुआ, ये इसके रिजल्ट से कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह का कॉम्बिनेशन के प्लांट्स बने, इस तरह के कॉम्बिनेशन के प्लांट बने। और उन्होंने देखा कि इस तरह के कॉम्बिनेशन बने जिसमें एक कैपिटल टी था, एक स्मॉल टी था, बट द रिजल्ट वाज द टॉल प्लांट, ठीक है, ऑल टॉल प्लांट, इट ऑल गेव राइज टू टॉल प्लांट, बेटर से ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट सेल्फिंग किया। सेल्फिंग, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फिंग, दैट उसी के सीड्स, मतलब एक इसी तरह का प्लांट्स, उसी में से जो प्लांट बने थे ना, एक तो प्लांट नहीं बने, बहुत सारे प्लांट बने, उनके सीड्स ले करके उनको ग्रो करा के फिर उनका पोलन ग्रेन और पोलिनेशन, यहाँ से यहाँ पोलन ग्रेन को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, एक फीमेल था एक मेल था प्लांट, ठीक है, मतलब फीमेल मेल नहीं, इसके पोलन ग्रेन को लेकर के इसके फ्लावर में जब डाला गया, जब सेल्फिंग हुआ, ठीक है, सेल्फिंग, इसी के पोलन ग्रेन को इसी के फ्लावर में जब डाला गया, तब एक अमेजिंग रिज़ल्ट आया, एक बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आया कि कुछ प्लांट्स टॉल थे, कुछ प्लांट्स इस तरह, और कुछ बहुत ही अजीब सडनली शॉर्ट प्लांट्स भी आ गए। ये इस तरह के ये टॉल प्लांट्स आए और ये जो है ना वो शॉर्ट प्लांट आया। तो सडनली ये शॉर्ट प्लांट कहाँ से आ गया? सडनली फ्रॉम वेयर द शॉर्ट प्लांट हैज़ कम, इट वॉज नॉट विजिबल इन द F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन में कहीं दिख ही नहीं रहा था शॉर्ट प्लांट, मगर सडनली इन द F2 जनरेशन, F2 बोलते हैं फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन फिलियल 1, F2 जनरेशन फिलियल 2, मतलब प्रोडक्ट क्या हुआ, तो सडनली 3:1 के रेशियो में 3 टॉल प्लांट्स के बीच में एक शॉर्ट प्लांट आ गया। दैट मीन्स इससे ये पता चला कि ये जो कैरेक्टर्स है ना, दीज आर द ट्रेड्स, इसको और अच्छे से हम बोलते हैं एलील, ठीक है। इन माई वीडियो आई हैव एक्सप्लेन दिस एज एलील। जो एलील है ना, दे आर सेग्रीगेटेड, ये अपने अपने समय में अलग अलग हो जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ लगे हुए नहीं है। जैसे यहाँ पर डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर में जैसा लग रहा है ये दोनों लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों लगे हुए नहीं हैं। जब ज़रूरत पड़ता है ये एक दूसरे से सेपरेट होके एक नया कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फिर वापस कभी भी जुड़ जाते हैं। जैसे ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया है, एक ये न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म में आया है, एंड ये फिर ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया है। मीन्स दिस इज़ कॉल्ड अस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट एनी टाइम ये अपने आप को शो कर सकते हैं। दे आर नॉट कनेक्टेड,
दे कैन बी सेग्रीगेटेड, वो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द टू एलील्स, इसको एलील बोलते हैं, दोनों को एलील बोलते हैं, ये एलील है, दोनों एलील है। दे कैन बी सेपरेटेड एट एनी टाइम, दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक चीज़ यहाँ पर क्या दिखाई दिया, यहाँ कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, मगर सिर्फ कैपिटल टी का ही इंडिकेट हुआ। जो हमारा दिख रहा है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जो फिनोटाइप दिखा, जो अपीयर होता है, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जीन्स जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो ये दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है ये, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है। और ये जो टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट ये जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। कि हमें दिख क्या रहा है, अंदर में कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, हमें दिख क्या रहा है। जैसे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा है, मगर ये टॉल प्लांट है। बट जेनेटिकली ये क्या है, इट हैज़ द एलील ऑफ शॉर्टनेस। तो ये हो गया डोमिनेंस कि वन एलील का जो कैरेक्टर है ना, विल डोमिनेट ओवर द अदर। एक डोमिनेटिंग एलील होगा और दूसरा रेसेसिव एलील होगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ये हम बोलेंगे इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी तरह उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस को बताया, विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।